So we'll quickly concepts of Earth magnetism. तो सबसे पहले तो study of Earth's magnetic field is known as geomagnetism और terrestrial magnetism. Then there are some basic concepts जैसे what is geographic axis, what is geographic meridian जिसको आप true meridian भी बोलते हो, what is geographic equator, what is magnetic axis, what is magnetic meridian, what is magnetic equator. ये 6-7 डेफिनेशन हमने कल किए थे, 6 आई गेस, बाकी 2 आज देखेंगे. तो geographic axis is a straight line passing through geographic north and geographic south pole या फिर a line about which earth rotates is known as geographic axis. तो ये geographic axis एक plane का part होगा. Any straight line is a part of some plane. तो ये geographic axis जिस plane का part है, that plane is called as geographic meridian or true meridian. So we have defined geographic meridian or true meridian. A plane containing geographic axis is known as geographic meridian. Then we have seen what is geographic equator. तो a great circle, why great circle? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइज के सर्कल बनते हैं. तो जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा और ये geographic axis को मतलब geographic meridian को क्या होना चाहिए? Perpendicular. A great circle on the surface of Earth in a plane perpendicular to geographic axis is known as geographic equator. फिर हमने देखा था magnetic axis. तो जैसे a straight line passing through geographic north and geographic south is known as geographic axis, वैसे ही a straight line passing through magnetic north pole and magnetic south pole is known as magnetic axis. Similarly, जैसे आपने geographic meridian define किया वैसे ही आप magnetic meridian भी define करोगे. A plane containing magnetic axis is known as magnetic meridian. जैसे आपने geographic equator define किया वैसे ही आप magnetic equator define करते हो. It is a great circle on the surface of Earth in a plane perpendicular to magnetic axis. तो ये सारे के सारे axis या meridian हमने diagram में दिखाए हैं. तो you can see ये GA मतलब geographic axis है, MA मतलब magnetic axis है, GM मतलब geographic meridian है और MM is magnetic meridian. GE is geographic equator and ME is magnetic equator. And as you can see, geographic meridian or magnetic meridian, they are not in the same plane, they are not in the same direction, they have some angle between them. इस angle को हम लोग बोलते हैं angle of declination. तो अगला definition है angle of declination या फिर magnetic declination. तो next definition is magnetic declination. So extremely simple. How will you define magnetic declination? The angle between meridian and magnetic meridian is known as magnetic declination. तो अगला definition है magnetic declination. और normally magnetic declination को आप denote करते हो थीटा से. The angle between geographic meridian and magnetic meridian is known as magnetic declination. तो एक्सट्रीमली सिंपल. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने ही पड़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. वी विल सॉल्व क्वेश्चंस टुडे आल्सो. तो रिमेंबर दिस इज लेट अस से ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. तो दोनों में जो एंगल है दैट इज डिक्लिनेशन. सिर्फ हम डायग्राम ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करते हैं. रिमेंबर अगेन दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं. तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में किसको रखते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन को. तो व्हेन यू ड्रॉ डायग्राम यू विल सी. तो ड्रॉ कर ही देता हूं मैं बेटर. तो ये एक प्लेन है और मेरिडियन एक प्लेन ही होता है. तो हॉरिजॉन्टल में हम किसको रखते हैं? मेरिडियन को. कौन सा मेरिडियन को? मैग्नेटिक मेरिडियन को. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन.
और ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दे आर नॉट एट सेम एंगल, मतलब दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल। तो ये आ गया आपके पास ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों में एंगल है कितना, थीटा। इस थीटा को क्या बोलते हो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इट इज जस्ट लाइक अ बुक, ओपन बुक, है ना। कहाँ गया, लेट अस टेक सम पेजेस। तो ऐसा है, सिंपल यू हैव समथिंग लाइक दिस। ये कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेटिक, और पीछे कौन सा है, ज्योग्राफिक। तो सम एंगल, दैट एंगल इज थीटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब अगला इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सो फार हमने जितना भी अर्थ मैग्नेटिज्म देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डिप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंगल ऑफ डिप denoted by delta. Angle of dip is the angle between या फिर angle made by Earth's magnetic field with respect to horizontal, या फिर angle of dip is the angle made by magnetic needle with respect to horizontal. अब मैंने ऐसा magnetic needle क्यों बोला, क्योंकि ultimately you should know magnetic needle कहाँ यूज होता है, कंपास। कंपास किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन, राइट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और नीडल का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। तो ये जो नीडल है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल यूज ही क्यों करते हो, क्यों यूज करते हैं, टू नो डायरेक्शन। तो दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो नीडल का डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो एंगल ऑफ डिप के दो डेफिनेशन आपको दिखेंगे, कहीं पे बोला होगा द एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब दिस एंगल, इस एंगल को बोलते हो एंगल ऑफ डिप डिनोटेड बाय डेल्टा। कहीं बोला होगा द एंगल मेड बाय डिप नीडल, मतलब मैग्नेटिक नीडल विद हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो एक ही बात है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया, मतलब मैग्नेटिक या डिप नीडल ने जो एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है। तो देयर इज नो डिफरेंस एज सच। तो डिफाइन कर लो, बहुत सिंपल है डिफाइन करना, द एंगल मेड बाय Earth's horizontal field, by Earth's horizontal field. I'll just say Earth's magnetic field, horizontal बाद में देखेंगे इसको, by Earth's magnetic field और dip needle मतलब कौन सा needle, magnetic needle, angle made by Earth magnetic field और dip needle with respect to horizontal, is known as angle of dip, गुड। तो ये क्या है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा कॉस कंपोनेंट, एक होगा साइन कंपोनेंट। तो ये आता है आपके पास बी कॉस डेल्टा और ये आता है बी साइन डेल्टा। तो हमको दिख रहा है बी कॉस डेल्टा, ये कौन सा डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सा डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये कौन हो गया, वर्टिकल, बीबी। So therefore you have horizontal component of Earth magnetic field as B cos delta and vertical component of Earth magnetic field as B sin delta. अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो BV अपॉन BH इक्वल टू B sin delta अपॉन B cos delta, BB हो गया कैंसल,
तो BV अपॉन BH इक्वल टू tan डेल्टा और डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ BV बाय BH। इस पे नीट और जेई में क्वेश्चंस आए हैं ओनली ऑन दिस फॉर्मूला, एक्सट्रीमली सिंपल है ये। तो ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, tan इनवर्स ऑफ BV बाय BH। अब हमको दिख रहा है, ऑफ कोर्स यू कैन सी, आपको याद होगा हमने जब वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था, तो अगर r वेक्टर दो कंपोनेंट है rx और ry, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस, तो कैन यू टेल मी ये b कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ bh एंड bv? अंडर रूट ऑफ bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर। डन, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट यू विल नीड। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक तुमको ये सारे के सारे एंगल्स नहीं पता होंगे, ये मेरिडियन क्या है पता नहीं होगा, एक्सिस क्या है पता नहीं होगा, तब तक इट विल बिकम डिफिकल्ट। A straight line passing through geographic north and geographic south is geographic axis. A straight line passing through magnetic north and magnetic south is. Are these two lines in the same direction? No, they are aligned at some angle to each other. That is called as magnetic declination. A plane containing geographic axis is known as geographic meridian. A plane containing magnetic axis is known as. Very good. A great circle on the surface of Earth which lies in a plane perpendicular to magnetic axis, magnetic and geographic axis. तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन है, या फिर मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस है, दे आर अलाइन्ड टू ईच अदर एट सम एंगल व्हिच इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो अगर हमने ये दोनों प्लेन्स ड्रॉ कर लिए, नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन हॉरिजॉन्टल में दिखाते हैं और उससे एट सम एंगल यू हैव जियोग्राफिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन में एंगल कितना है? थीटा, राइट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा ना, जियोग्राफिक मेरिडियन में क्यों होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्लेन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा वो, राइट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, इसने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है, इसको क्या बोलते हो? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। तो एंगल किससे मेजर किया? हॉरिजॉन्टल। तो द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड with respect to horizontal is known as angle of dip। या फिर अगर मैं बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता कैसे लगेगा? कंपास के थ्रू। कंपास में क्या होता है? नीडल होता है, जिसको आप डिप नीडल या फिर क्या बोलते हो? मैग्नेटिक नीडल। तो इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन बनता है, द एंगल मेड बाय डिप नीडल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। सिंपल। तो दो कंपोनेंट आ गया, BH इक्वल टू B cos डेल्टा एंड BV इक्वल टू B sin डेल्टा। दोनों को डिवाइड कर दिया तो मिल गया tan डेल्टा BV बाय BH। डन, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। अब हम स्टार्ट करेंगे विद सम न्यूमेरिकल्स एंड दे आर सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो जितने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे होंगे उतने ठीक, जो नहीं हुए वो आपको क्या है? असाइनमेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 12.1। तो सबका ध्यान अब यहाँ पे। एग्जाम्पल 12.1। A short magnetic dipole has magnetic moment 0.5 ampere meter square. Calculate its magnetic field at a distance 20 centimeter from the center of magnetic dipole on the axis and on the equatorial line.
गिवन म्यू जीरो इज 4.10⁻⁻7। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है, मतलब एक बार मैग्नेट है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उसको क्या बोलते हो, मैग्नेटिक डाइपोल। तो बार मैग्नेट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। हमारे पास शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है। शॉर्ट, ये वर्ड मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ये वर्ड कब यूज होता है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो आपको हिंट दे दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि टोटल एक्सिस पे दो फॉर्मूला बनते हैं और इक्वेटर पे भी दो फॉर्मूला बनते हैं। लेकिन शॉर्ट बोला हो तो उस केस में जो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल का फॉर्मूला था, म्यू 0/4π2m/r³ फॉर एक्सिस एंड म्यू 0/4πm/r³ फॉर इक्वेटर। तो ये दो फॉर्मूला यूज करने हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की वैल्यू दी है, आपको डिस्टेंस भी दिया है, आपको पूछा है एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले जो जो गिवन पैरामीटर है वो लिख लेते हैं। m इज गिवन टू यू, कितना था, 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब r कितना था, 20 सेंटीमीटर था, 10⁻², मतलब बेसिकली 2 × 10⁻1। गुड। और आपको म्यू जीरो की वैल्यू बताई है, म्यू जीरो की वैल्यू क्या बताई है, 4π × 10⁻⁷, मतलब म्यू 0/4π is 10⁻⁷। You are supposed to find out two things. Number one, axial magnetic field. Number two, equatorial magnetic field. So what is the formula of axial magnetic field? Mu 0/4π 2m/r³. What is the formula for equatorial? Mu 0/4π m/r³। मतलब कैन आई राइट डाउन दिस एज, इधर 2 लिखा और डिवाइड बाय 2 कर लिया तो चलेगा। तो ये क्या है, बी ए डिवाइड बाय 2। तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलता है आपको, इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो तुम वैसे भी करने ही वाले हो इधर, तो डबल डबल कैलकुलेशन करना नहीं। म्यू 0/4π m/r³, म्यू 0/4π m/r³ is half of म्यू 0/4π 2m/r³। मतलब equatorial magnetic field is axial magnetic field by 2, equatorial magnetic field is axial magnetic field by 2। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल है, एक बार कैलकुलेशन करोगे, दोनों बार यूज करोगे, डन। तो नंबर 1 बी ए, व्हाट इज म्यू 0/4π, 10⁻⁷, 2 × 0.5 और r का क्यूब, r कितना था, 2 × 10⁻⁻1 का क्यूब। सिंपल सिंपल। 0.5 × 2 इज 1, ऊपर 10⁻⁻7, नीचे 2 का क्यूब इज 8 और 10⁻³ वैसे तो 1/8 सबको पता होना ही चाहिए। व्हाट इज 1/8? 0.125, that is 0.125 10⁻⁻⁴ टेस्ला। हो गया, खत्म। तो ये मिल गया आपको, कौन सा फील्ड मिल गया, ये एक्सियल। और इक्वेटोरियल फील्ड निकालना है। अगर गॉस में लिखना हो तो हाउ मच इज 1 गॉस, 10⁻⁴। तो ये गॉस है, 0.125 गॉस। तो नॉर्मली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ गॉस, नॉर्मली ऐसा होता है। देखते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है ना, या यही लिखा है 0.125 × 10⁻⁴ है टेस्ला में, और गॉस में 0.125 गॉस है। एंड इक्वेटोरियल फील्ड इज BA/2, तो कुछ नहीं है, इसका हाफ कर लो, 0.0625 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या फिर 0.0625 गॉस। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, again a simple one. Earth's magnetic field at equator is approximately
4 into 10 raised to minus 5 Tesla. Calculate Earth's dipole moment. Given radius of Earth is 6.4 into 10 raised to 6 meter and value of mu zero is 4 pi into 10 raised to minus 7 in SI units. तो हमको गिवन में क्या है, हमको गिवन में दिया हुआ है Earth's magnetic field at equator 4 into 10 raised to minus 5 Tesla. फिर आपको दिया है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. फिर आपको म्यू जीरो की वैल्यू दी है, मैं म्यू जीरो बाय 4 पाई की वैल्यू लिख लूंगा 10 raised to minus 7. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है डाइपोल मोमेंट ऑफ अर्थ. एम पूछा है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है आपको. तो एक्सट्रीमली सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, बी इक्वेटर. व्हाट इज बी इक्वेटर, म्यू जीरो बाय 4 पाई कौन सा आर, कैपिटल आर, बराबर है ना. इक्वेटर पे बोला है, फील्ड कहाँ दिया है, इक्वेटर पे. डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, सेंटर ऑफ अर्थ से. तो सेंटर ऑफ अर्थ से मतलब मैंने इसलिए डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि अर्थ इज लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट. तो अगर याद नहीं है तो फिर समझ लो वापस से, ये अर्थ का मैग्नेटिक एनालॉग है, मतलब अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट. तो ये बार मैग्नेट कहाँ से पास हो रहा है, अर्थ के सेंटर से. तो किसी भी पॉइंट पे तुमको अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस मतलब इक्वेटर तक डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ अर्थ क्यों दिया है, इसके तो दिया है रेडियस ऑफ अर्थ. So that is why they are telling you that you have radius of Earth as 6.4 into 10 raised to 6. तो उधर सिर्फ कैपिटल आर लिखना है, दैट इज द आइडिया, डन. बाकी कुछ नहीं. क्या फाइंड करना है, m. तो m यहाँ से m का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इक्वल टू b इक्वेटर r क्यूब अपॉन म्यू जीरो बाय 4 पाई. इस पूरे म्यू जीरो बाय 4 पाई को उठा के डिवाइड कर दिया. तो म्यू जीरो बाय 4 पाई डिनोमिनेटर में आ गया, आर क्यूब न्यूमरेटर में गया, डन, बन गया फॉर्मूला. अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. m इक्वल टू 4 into 10 raised to minus 5, 6.4 into 10 raised to 6 का क्यूब अपॉन ये वैल्यू 10 raised to minus 7 है. m इक्वल टू 10 raised to 18, 18 में से 5 गए 13 और 7 ऐड हो गए 20, कितना 20. तो 4 into 6.4 का क्यूब into 10 raised to 20 बराबर 6.4 का क्यूब फाइंड करना पड़ेगा. 6.4 का क्यूब जो भी है, अब 6.4 का क्यूब 6.4 का क्यूब 6.4 का क्यूब 262.144 इंटू कितना है 4, 1048.576. तो 1048.576 इंटू 10 raised to 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये आंसर होना चाहिए, यही आंसर है, डन. 10 raised to 20 ना. एक बार सिर्फ नंबर एक बार वेरीफाई कर लो, सिर्फ नंबर एक बार वेरीफाई कर लो. 10 raised to minus 5, 10 raised to 18, 18 में से 5 गए 13, 7 जाके ऊपर 20, तो वो 20 है बराबर 6.4. 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है ना, 36 6 216 into 4 1000 के आसपास, बराबर है आंसर, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, practice problem number 1. So 12.3 will be given to you as an assignment. वही 3-4 फॉर्मूला जो हमने यूज किए वही वापस से यूज करने होंगे. A magnetic pole of a bar magnet with pole strength of 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को विजुअलाइजेशन करना जरूरी है. मैग्नेटिक पोल ऑफ अ बार मैग्नेट मतलब एक ऐसा मैग्नेट होगा, सपोज उसका ये एक पोल है, उस पोल का स्ट्रेंथ दिया है
QM की वैल्यू दी है कितनी 100, इट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। तो और एक बार मैग्नेट है नीचे, और एक बार मैग्नेट है, उसके सेंटर से कितना दूर है ये 20 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट हैज पोल स्ट्रेंथ ऑफ 200 एम्पियर मीटर। ये कौन से बार मैग्नेट की बात चल रही है, दूसरे बार मैग्नेट की। उसका पोल स्ट्रेंथ कितना है 200 एम्पियर मीटर एंड हैज अ लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ 5 सेंटीमीटर मतलब 12। जब लेंथ बोला होता तो कौन सा लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। अगर स्पेसिफिकली बोला होगा कि ज्योमेट्रिक लेंथ तो ज्योमेट्रिक लेंथ, नहीं तो क्या मैग्नेटिक लेंथ। व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ 12। इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, वो जो मैग्नेटिक पोल है जो ऊपर तुमने रखा था वो अगर एक्सिस पे है, किसके एक्सिस पे है, बार मैग्नेट के एक्सिस पे है। ओके, फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल। गुड। तो पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो यू हैव टू विजुअलाइज, हमारे पास दो बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है लेटर से, और एक दूसरा बार मैग्नेट है। यू हैव वन मोर बार मैग्नेट। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी फिलहाल तो हमको ऐसा दिया है। क्यों ऐसा दिया है, क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस। तो अगर मैं इमेजिन करता हूं ये बार मैग्नेट है, इसका एक्सिस है, और यहाँ पे ये जो एक पोल है सिंगल पोल, वो कहाँ पे है, एक्सिस पे है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी देते हैं, दे मे गिव यू समथिंग लाइक दिस, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो दूसरा मैग्नेटिक पोल था वो कहाँ पे था, इक्वेटर पे, मतलब ऐसा भी बता सकते हैं। तो दे कैन इवन टेल यू दिस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो रिमेंबर, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है अच्छे से। ऐसा भी हो सकता था, हो सकता है। तो पहले सिचुएशन में जो पोल है, पोल जिसका स्ट्रेंथ कितना दिया है 100, वो कहाँ पे है, दूसरे मैग्नेट के एक्सिस पे है, और दूसरे मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कितना है 200, और दूसरे मैग्नेट का लेंथ कितना है 5, मतलब 12 इक्वल टू 5। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, देख के करना। क्यों, क्योंकि आखिरी में पूछेंगे कि बोलेंगे फोर्स कितना है, देखो यही पूछेंगे आपसे, वो मोस्टली तो वही पूछेंगे, फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक पोल। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, charge on a charge due to electric field, Q into E, Q into E। अब ये दो ओरिएंटेशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैंने पूछा होता व्हाट इज द फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक पोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, QM into B, पोल स्ट्रेंथ into B। लेकिन कौन सा B, एक्सिस का B कि इक्वेटर का B, हमारे केस में कौन सा B, एक्सिस का B। अगर यही ओरिएंटेशन इक्वेटर पे होता तो इक्वेटर, तो आंसर 2 से चेंज होगा, बाय फैक्टर ऑफ 2 आंसर विल चेंज, क्योंकि तुम अगर बी एक्सिस लिखते हो तो उसमें 2 आता है ऊपर, μ0/4π। अगर अगर आप इक्वेटर पे लिखते हो तो 2 नहीं आता है। तो दैट इज द रीजन कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तुमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गए, फिर आंसर गलत आएगा। और ये नॉर्मली एमसीक्यू फॉर्म में देते हैं इन जेईई नीट, तो गलती करवाने की कोशिश होती है। तो लेट अस से ये जो मैग्नेट है ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। ये कोई भी एक पोल होगा, साउथ होगा, नॉर्थ होगा, जो भी होगा, हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, हमको मैग्नीट्यूड देखना है। अगर नॉर्थ होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स है, साउथ होगा तो रिपल्सिव। दैट्स इट। ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है। तो अभी हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, हमको गिवन पैरामीटर में एक काम करता हूं, इसके पोल स्ट्रेंथ को बोलता हूं QM1, और इस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को बोलता हूं मैं QM2, राइट। तो QM1 पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल जिस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ये है 100 एम्पियर मीटर, और QM2 जो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है वो है 200 एम्पियर मीटर, और जो मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ है 12, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, बराबर 5 सेंटीमीटर। तो L कितना जाएगा 2.5। हमको L की जरूरत नहीं है नॉर्मली, बट जस्ट टू राइट डाउन। फिर ये जो
ये जो पोल है ये मैग्नेट के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है 20, राइट। तो 20 सेंटीमीटर हमें बोला है, तो 20 सेंटीमीटर हमें बोला है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 20 आ गया, इसको मैं स्मॉल आर बोल दूंगा। तो व्हाट इज स्मॉल आर? 20 सेंटीमीटर। तो यू हैव स्मॉल आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। गुड, राइट। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, क्योंकि 8 टाइम्स वही है ना, 8 टाइम्स बिग नंबर। और वैसे भी आपको तो शॉर्ट शॉर्ट के लिए दिया है ना, शॉर्ट मैग्नेट के लिए आपको ऐसा बताया है क्या कि व्हेन आर इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, फॉर्मूला बताया आपको? नहीं। तो मैग्नेट केस में नॉर्मली क्या होता है, शॉर्ट मैग्नेट मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो उस केस में आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? फोर्स। क्या फाइंड करना है? फोर्स। तो फोर्स कैसे फाइंड करते हो? क्यू एम इंटू डी। कौन सा क्यू एम? किस पे फोर्स एक्ट हो रहा है? पहले 1 नंबर पे कि 2 नंबर पे? 1। तो क्यू एम 1। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? 2 का। और ये कौन सा है? इक्वेटोरियल की एक्सियल है, और ये 2 का है। ये 2 नंबर है, ये मैग्नेट नंबर 2 है, ये मैग्नेट नंबर 1 है। फोर्स एक्ट हो रहा है मैग्नेट 1 के पोल पे, और लगा कौन रहा है? मैग्नेट नंबर 2। तो ऐसा फॉर्मूला आएगा। ये हो गया आपके पास जनरल फॉर्मूला। लेकिन ये BA2 पहले अलग से लिख लो, गड़बड़ होती है बाद में। μ0/4π बराबर, राइट। देन 2m/r³। चलो ये तो समझ लिए, हाउ टू फाइंड आउट m। तुम्हारे पास qm है, qm इंटू 2l। तो ये आ जाएगा μ0/4π 2qm। कौन सा qm? सेकेंड, इंटू क्या? 2l/r³। ये मिल जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड वहां सब्स्टिट्यूट करोगे, डन, राइट। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ ये 1 और 2 का कंफ्यूजन रहता है। जिस पे फोर्स लग रहा है ना उसको 1 बोल दो। किस पे फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक पोल पे। उधर पोल ही वर्ड यूज किया, तो मैंने सेकंड पोल दिखाया नहीं, एक ही पोल दिखाया, क्योंकि क्या बोला उन्होंने? मैग्नेटिक पोल, डन। तो मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है, किसके से लग रहा है? सेकंड मैग्नेट की वजह से। सेकंड मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कितना है? 200, राइट। लेंथ कितना है? 5, बराबर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? QM इंटू बी। कौन सा QM? जिस पे फोर्स लग रहा है। किस पे लग रहा है? पहले पे। बी किसका? सेकेंड का। लेकिन ये एक्सियल है, क्योंकि वो पोल कहाँ रखा है? एक्सिस पे। तो क्या लिखूंगा मैं? एक्सियल। लेकिन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कैसे करते हो? μ0/4π 2m/r³। तुमको m दिया है क्या? नहीं, m फाइंड करना पड़ेगा। m कैसे फाइंड करते हो? QM इंटू किसका? m, सेकेंड मैग्नेट का। तो यहाँ पे पैरामीटर किसके लिखोगे? सेकेंड मैग्नेट के। तो यहां से आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड मैग्नेट, राइट। और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट। तो सब्स्टिट्यूट करो, डन। पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, उसके बिना आंसर नहीं आएगा। तो पहले सेकेंड मैग्नेट का एक्सियल फील्ड फाइंड कर लो। μ0/4π होता है 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू QM2 कितना था? 200, बराबर। इंटू 12 कितना था? 5। क्या था? सेंटीमीटर। 10⁻²। ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अपॉन क्या था? R³। R कितना है? 20। कितना है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने ना सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखे हैं मीटर में, बाकी कुछ नहीं। तो 2 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि 20 इंटू 10⁻2 है, तो 2 इंटू 10⁻1 आ गया। दैट इज आइडिया हियर। सिंपल सिंपल। तो कर लो इसको सॉल्व। दिस इज इक्वल टू, देखो ये 5 इंटू 200 1000 होता है, 1000। 10⁻⁻7 और -2 -9 और 1000 -6 तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा 10⁻3। 2/8 is 1/4, 1/4 is
0.25 × 10⁻³ टेस्ला, बराबर। तो यही 10⁻⁻⁴ में आता है, तो करेक्ट है। ये मिल गया फील्ड मैग्नेट का। अब फाइंड करना है फोर्स, तो कर लो फाइंड फोर्स। फोर्स इज Qm1 into actual magnetic field of 2. What is Qm1? 100. What is actual field of 2? 0.25 into 10⁻⁻3। फोर्स होता है न्यूटन में, बराबर। ये 10⁻⁻3 है और ये तो 0.025 -3 + 2 -1 बचा। 0.25 into 10⁻⁻1 है 0.025 न्यूटन। आइडियली तो आंसर ये होना चाहिए। अभी आप देख लो क्या आंसर दिया है, बराबर। तो यही आंसर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two small and similar bar magnets have magnetic dipole moment of 1 ampere/meter² each. They are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other. A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of another magnet. ठीक है। If the distance between their centers is 2 meters, okay, find the magnitude of magnetic field at the midpoint of the line joining their center. तो इस क्वेश्चन में भी पहला काम होना चाहिए विजुअलाइजेशन का। सबसे पहले यू शुड मेक अ इमेज इन योर माइंड कि हाउ दीज टू मैग्नेट्स आर केप्ट, और क्योंकि आइडेंटिकल मैग्नेट्स है तो उनका लेंथ भी सेम है। तो ये एक मैग्नेट हो गया, दूसरा मैग्नेट है, दे आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दैट इज द स्टोरी, ऐसा है। दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम आर केप्ट। ऐसा बोला है कि दोनों की एक्सिस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। ये एक का एक्सिस है और ये दूसरे का एक्सिस है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज द ओरिएंटेशन, ऐसा है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट पे, इस पर्टिकुलर टाइप पे क्वेश्चन आते हैं। फिर ये जो है, ये पहले का सेंटर हो गया और ये दूसरे का सेंटर हो गया, और दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को कितना बताया है, 2 मीटर। तो ये आ गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज 2 मीटर। ये आ गया 2 मीटर। फिर इसके हाफ डिस्टेंस पे, मतलब 1 मीटर पे क्या पूछा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड। हाफ डिस्टेंस तो मोर और लेस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, मोर और लेस। तो आपको ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, लेटर से पी पॉइंट है। ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस भी है 1 मीटर। इस पी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब एक काम करो, पहले तो यहाँ पे बता दो पोल्स। इसको साउथ बोल दो, नॉर्थ बोल दो, कोई फर्क नहीं, डजंट मैटर, डजंट रियली मैटर। तुम किसको नॉर्थ बोल रहे हो, किसको साउथ बोलो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। फर्क इससे पड़ता है कि आपको डायरेक्शन पता है क्या, नॉर्थ, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर मैं पहले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं पी पॉइंट पे, पहला मैग्नेट, तो पहले तो एक काम करो, पहला कौन सा मैग्नेट दूसरा कौन सा मैग्नेट वो बता दो। ये पहला मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट, यहाँ तक क्लियर। अब इधर भी ले लूंगा मैं, I'll take this as नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप बताओ क्या बोलना है, नॉर्थ बोलना है, साउथ बोलना है, साउथ, चलो ठीक है साउथ। तो इसको बोल देंगे साउथ, इसको बोल देंगे नॉर्थ। वैसे ज्यादा बेटर होता है उल्टा लिखते तो, पर ठीक है। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। तो तुम फील्ड फाइंड कहाँ कर रहे हो, पी पॉइंट पे। कहाँ फाइंड कर रहे हो, तो पी पॉइंट पे पहले मैग्नेट का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स। कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, बराबर। तो ये किसका फील्ड है, पहले का। तो पहले के फील्ड को क्या बोलूंगा मैं, B1। कहाँ पे है, ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और एडिशनली ये इक्वेटोरियल फील्ड है कि एक्सियल फील्ड है, एक्सियल, क्योंकि ये पी पॉइंट पहले मैग्नेट के किस पे है, एक्सिस पे। तो B1 क्या आएगा बताओ, μ0/4 2m/r³। डिस्टेंस का बाद में देख लेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लो। सेकेंड मैग्नेट के लिए ये पी पॉइंट एक्सिस पे है कि इक्वेटर पे है, और डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ।
लेकिन तुम फाइंड क्या कर रहे हो, पी पॉइंट पे, तो डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब डायरेक्शन आएगा ऐसा, सही है, बराबर ना। ये कौन है, B2 है। और ये जो पॉइंट था P, ये सेकेंड मैग्नेट के इक्वेटर पे था कि एक्सिस पे था, तो फिर फॉर्मूला क्या लिखोगे, B2 इक्वल टू μ0/4 π m/r³। एंड इफ यू सी प्रॉपरली यू विल फाइंड कि ये B1 है और ये B2 है और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, √B1² प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B, क्योंकि पूछा वही है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखोगे तो वही पूछा है आपको, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। तो आपको पूछा B है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है B1² प्लस B2²। B1 और B2 सब्स्टिट्यूट करो, राइट। उससे पहले एक काम करो, सब्स्टिट्यूट तो करो वो तो करना ही पड़ेगा, बट यू शुड सिंप्लीफाई थिंग्स एज मच एज यू कैन, जितना पॉसिबल होगा उतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर लेना पहले से ही। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, इक्वेटोरियल फील्ड इज हाफ ऑफ एक्सियल फील्ड, B2 इज इक्वल टू B1/2, या फिर B1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B2, वो भी चलेगा। सिर्फ ये 2 को बाहर निकाल लोगे, अंदर क्या बच गया, μ0/4 π m/r³, तो B1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B2, दैट इज आल्सो फाइन, नो इश्यू एट ऑल, चलता है। तो देयरफॉर B इक्वल टू √B1², लेकिन B1 क्या है, 2B2, उसका स्क्वायर मतलब 4B2² प्लस B2², तो कितना आ गया 5B2², तो √5B2², तो कितना आ गया √5B2, लेकिन B2 क्या है, μ0/4 π m/r³। ओके, so therefore B इक्वल टू √5 μ0/4 π m/r³, बराबर, सही है ना। √5, दिस इज 10⁻⁻⁷, m की वैल्यू कितनी दी थी, 1 दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस भी कितना है, 1 है, 2 का हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 2, फील्ड का फाइंड कर रहे हो मिड पॉइंट मतलब हाफ पे, मतलब कितने पे 1, तो 1 खत्म हो गया, √5 × 10⁻⁷ टेस्ला, तो ऐसा आंसर होना चाहिए, है ना।